वेल हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। आज स्पेशली लेकर आया हूँ आप पॉडकास्ट, वही पॉडकास्ट जिसका आपको इंतजार था, वो है एफटीसी द फेस इन द क्राउड। आज ये पॉडकास्ट बहुत खासम खास है। खासम खास 3-4 वजहों से है, लेकिन इसलिए खासम खास है सबसे पहले कि जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो कलाकार भी हैं और साथ साथ एक आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो यानी कि गवर्नेंस और आर्ट का ये मिलन कभी कभी देखने को मिलता है, जो कि एक अनोखा मिलन होता है या संगम होता है स्पेशली। अब हालांकि इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और किसी तरह से जब मैम ने हमें टाइम दिया था तो उस वक्त वो नहीं हो पाया, और थैंक्स टू मुंबई की बारिश कि ऐसा कभी कभी बीच में हो जाता है। लेकिन आज हम लोग उस इंटरव्यू को कैंडिडली करेंगे, अनफिल्टर्ड करेंगे, अनसेंसर्ड करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पूछेंगे जो चीज़ें अभी तक आपको नहीं पता थी। इसके लिए मैं मैम का बहुत बहुत आज वेलकम करता हूँ, और पहले मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ और उन्हें आप लोगों से रूबरू कराता हूँ, मुखातिब कराता हूँ और इंट्रोडक्शन देता हूँ। Her name is Miss Nidhi Chaudhary. Nidhi Chaudhary is an accomplished IAS officer, artist, author, and TEDx speaker who perfectly blends the worlds of governance and creativity. She currently serves as the director of National Gallery of Modern Art, Mumbai, जहाँ स्पेशली मेरे लिए ये जगह इसलिए ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि मैंने दोनों बार अपना स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था एंड आई गॉट दैट। एंड डेफिनेटली आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड थैंक्स टू मैम, शी इज़ ऑन ऑल इन ऑल हेयर, where she is leading powerful initiatives to make modern art more accessible and meaningful to the next generation. Before joining the IAS in 2012, Nidhi worked with Reserve Bank of India and the Indian Audit and Accounts Services, bringing strong financial and administrative expertise to her public service journey. A gold medalist in MA English Literature, she holds multiple master's degree along with CAIIB, UGC NET, and a diploma in fine arts. Alongside her administrative work, she has built a rich creative identity as a painter and writer. Her blog, Nidhi Naveli, reflects her love for art, poetry, literature, and life reflections. Nidhi is also TEDx speaker and published author known for her thought-provoking talks on leadership, culture, and creativity. Though definitely मैंने अभी तक एक भी सेशन उनका नहीं लिया, and definitely I would love to do that. And leadership, culture, creativity, her journey inspires young Indians, especially, yes, definitely like me, especially women, to embrace multiple passions fearlessly and lead with both intellect and imagination. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Nidhi Chaudhary. Ma'am, how are you? Very warm welcome here. Thank you, Abhinav. I'm very good. Hope you are too. Thanks to you, definitely. और फाइनली कहते हैं कि देर आए दुरुस्ती के साथ आए, तो स्पेशली हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ अब पॉडकास्ट शुरू कर पाए और कर लिया। You have an extraordinary career from RBI and CAG to IAS and now leading NGMA Mumbai. While also being an accomplished artist and author, how would you describe this journey in your own words? I would say that I have come a long way, but I still have a long way to go. In the words of Robert Frost, You know, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. I think there was a poem, the stopping by woods on a snowy evening. Yes, but this is Robert Frost's favorite poem, and Pandit Nehru wrote this on his last day. Oh wow. So he wrote this poem and he left the world. अगर मैं सही हूँ तो मुझे शायद इसका वो ट्रांसलेशन पता था हिंदी वाला कि जो अभी तो मिलो मुझको मिलो मुझको चलना है, बिल्कुल वही वाली कविता है। ठीक ठाक भाई याद है, वरना मैम मुझसे अभी कहती कि तू आर्टिस्ट होगा, तू पढ़ के नहीं आया है। आज मैम मैं आप लोगों से जो आपके साथ जो सवाल करने वाला हूँ वो कैंडिड भी रखेंगे, आपके साथ कुछ अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड भी होंगे, एंड आई थिंक यू रेडी फॉर दैट। ओके, लेकिन पहले कुछ आपकी जर्नी और उसके बाद वो सवाल। ओके, with so many roles and responsibilities, how have you evolved over the years, both as a civil servant, as a human being? अच्छा, इसके साथ एक और सवाल कि मतलब आप पहले कंफ्यूज ज़्यादा थे या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप टैलेंटेड ज़्यादा है? मतलब कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। So there is a very famous quote by a famous author, and he goes like, someone who knows what he wants to become will become a good teacher, a good engineer, a good doctor. But someone who is exploring all his life will become a legend. Okay. This is by Oscar Wilde. And I think between life, birth, and death, this journey that we spend here on earth, we should keep exploring ourselves and try to become the best version of ourselves.
And I am striving for that. And I believe this is also a fundamental duty given in our Constitution, Article 51K, which has been inserted after an amendment in 1974. And this amendment has inserted 10 duties, fundamental duties. One of the duties is to strive for excellence. So I think as a citizen also, it is my moral duty to keep trying my best to find out what is my true calling, to become what I can become in any stream of life. But so strange actually is you are now also searching for that. And but actually that's the journey. Actually you are searching for the excellence in yourself. Yes. कि वो कब तक अभी तक अगर अभी भी आपको नहीं लग रहा नहीं अभी नहीं आया है वो अभी और भी बहुत ज्यादा वक्त है उसके लिए. Miles to go. Miles to go. Okay, wonderful. I mean, actually, you are on that path, especially. You are a gold medalist in English literature, hold multiple degrees and a diploma in fine arts. What inspired you to blend such rich academic knowledge with public services? खासकर उस वक्त मिलना बड़ा मुश्किल है इस तरह से काम करते करते. पहली चीज ये है कि जब मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी तब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे. तो पहला टिप उनका ये था जो उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताया था कि वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के ऐसे में उनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे. एंड ही टोल्ड मी दैट नाउ ही कांट राइट अ पैराग्राफ, ही कैन ओनली राइट चर्चा करा, चर्चा झाली, मान्य अमान्य. And this, and it might give you an impression that it was just a funny anecdote, but that's not the case. हाँ ये मैंने actually why सिस्टम में हम लगातार जब काम करते रहते हैं और उस काम के बीच में खुद को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते, खुद को अपस्किल करने की कोशिश नहीं करते, नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं करते, तब हमारी जो एंट्री होती है हम उससे भी धीरे 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 डेटेरियोरेट होते रहते हैं. और लिखने की कला जो है, पढ़ने की कला जो है, ये सब कलाओं में धीरे धीरे हमारी महारत कम होती जाती है. तो ये एक बहुत बड़ा कारण था. और दूसरा, मैंने जब सिविल सर्विसेज के बारे में जाना और जब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी काम करती थी, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और सभी अच्छे कॉरपोरेट सेटअप में, कॉरपोरेट कंपनीज में भी लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स को सबैटिकल देती है, स्टडी लीव देती है, हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने पदों से, अपनी पोस्टिंग से, पोजीशन से, कभी एक शहर में रह रहे हैं, बाहर जाने की, अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलते. मैंने हर बार कोशिश की है कि मैं कुछ नया सीखती रहूं. और आज के दौर में खासतौर पे मुझे लगता है कि जब नई चीज़ें हो रही हैं, एकेडमिकली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया. मैं राजस्थान के बिल्कुल गांव से आई हूँ जहाँ आधी बार लाइट नहीं होती थी, वहां से आज इस दौर में आना जब फोन पर हमें सब कुछ मिल रहा है. तो अगर मैं तैयार नहीं हूँ नई चीजें सीखने के लिए, तो आज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी उतनी अच्छी सेवाएं जनता को दे पाऊंगी क्या, मुझे खुद को उस मामले में एक प्रश्न निर्माण होता है. इसलिए मैंने कोशिश की. जब मैं रिजर्व बैंक में थी तब भी मैंने 2 मास्टर्स किए, 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, JIIB, CAIIB. और आईएएस में खास तौर पे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिशन कर्मयोगी करके सरकार ने पोर्टल बना रखा है जहां बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए जाते हैं. इवन इंटरनेशनल ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी हमें मोटिवेट किया जाता है. ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऑफिसर्स ये करते नहीं है. क्या है कि इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर पूछना चाह रहा था. रीजन यही है. रीजन एक तो देखिए, हम सोशलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है. हमें सबको, हम डिग्री इसलिए लेते थे कि हमें डिग्री लेनी है ताकि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए. उस एग्जाम को पास कर लिया तो अब संतुष्ट हो गए. बहुत ज्यादा अति समाधानी हो जाते हैं हम लोग. और भले ही हम आईएएस में है या ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, उसमें भी एक बार हमें आने के बाद लगता है अब कुछ नहीं करना है. ये सबके साथ होता है. ऐसा नहीं है कि मुझे भी करते समय बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं. और मुझे भी, मेरे घर में भी कई लोग कहते हैं कि व्हाई डू यू हैव टू कीप लर्निंग. अब सब कुछ तो पा लिया, अब क्या? हाँ, सब अब क्या चाहिए, अब क्यों चाहिए. तो ये एक बड़ा स्वाभाविक एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वंस यू get a job, you feel like now I am settled and now there is no need to dig more, to explore more and to keep striving. It's not easy. से मैं अभी भी अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ
मुझे हर साल किसी न किसी जगह एग्जाम सेंटर्स में जाना होता है, जहाँ बाकी बच्चों के साथ मैं भी 3 घंटे बैठती हूँ, परीक्षा लिखती हूँ। जस्ट लाइक इन्विजिलेटर्स आते हैं, वो कहते हैं यहाँ साइन करो, वहाँ करो, एंड दिस हेल्प्स मी ऑल्सो स्टेइंग ग्राउंडेड। दिस मेक्स मी एम्पैथेटिक, क्योंकि मैं हर साल रेगुलरली कॉलेजेस में विजिट कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। मुझे पता भी चलता है कि नया क्या हो रहा है, नई जनरेशन क्या सोच रखती है। आसान नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। उसमें अगर एक्चुअली कॉमिक एंगल देखे तो क्या ऐसा कभी होता कि आपकी हम क्या मतलब तलाशी लाए, आपको क्या पूछें कि आप कुछ कॉपी के लिए सामान लाए हो नहीं लाए हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपका साइन भी लेते होंगे तो कहते होंगे अब क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ मिलता है? नहीं, किसी को नहीं पता होता कौन है। हाँ, सबसे अच्छी बात, बिकॉज भारत इतना बड़ा देश है और मुंबई इतना बड़ा महानगर है, एग्जाम सेंटर हर बार अलग आता है। मैं बिल्कुल कॉमन स्टूडेंट्स की तरह जाती हूँ और जाके बैठती हूँ, और मुझसे भी कहा जाता है अब अपना आई कार्ड बाहर निकालिए, जो भी यूनिवर्सिटी से कर रही होती हूँ, और फ़ोन बाहर रखना है या सारी चीज़ें रखनी है तो रखनी है, और अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है कि जब आप परीक्षाओं के लिए तैयार होते हैं तो आपको बहुत हम्बल होना होता है, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और आप अपनी सरकारी गाड़ी में बिल्कुल एग्जाम सेंटर के बाहर उतरना चाहते हो, तब तो निश्चित तौर पे किसी न किसी को पता चल जाए। चाहिए और फिर प्रोटोकॉल सुन के बढ़ हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो और आप बिल्कुल एक आम सर्वसामान्य विद्यार्थी की तरह जाते हैं और परीक्षा लिखते हैं, और हर साल परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार हैं, पास और फेल होने के लिए तैयार हैं। तो ये बट जिंदगी अपने आप में एक परीक्षा है, ये परीक्षा ऐसे छोटी सी है। इक्विनिमिटी आ जाती है, इक्वानिमिटी आ जाती जो है। आपके साथ साथ वेरी वेल आंसर्ड। ओके, गोल्ड मेडलिस्ट क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर में रही हैं और मैंने भी जैसे आप करती रही हैं, मैं करता रहता हूँ, बार बार मैंने किया है, तो मुझे तो कुछ और कविताएं, एक तो सबसे अच्छी बात है कि मैंने पहले जॉन मिल्टन की द पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी क्योंकि वो 12th में पढ़ी थी, तो बाद में दोबारा मुझे मिल गई, और फिर तो चौसर, जोफ्री चौसर तो बहुत सारी कविताएं जानने को मिली। सो विच वाज योर फेवरेट, ये जो आपको पढ़ने को मेरा अच्छा लगा? मेरे मोस्ट फेवरेट पोइट में रविंद्रनाथ टैगोर है, एंड उनका गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे ग्रेजुएशन में भी था, मास्टर्स में भी था। वेयर द हेड इज हेल्ड हाई इज माई मोस्ट फेवरेट पोइम। और हिंदी में अगर उर्दू में कहें तो कैफी आजमी की औरत है, विच इज माई मोस्ट फेवरेट नज्म। बहुत बढ़िया। सो अगर जिन लोगों ने अभी जान लिया है मैम से, तो प्लीज़ वो ज़रूर कैफ़ी आज़मी जी की वो पोएम को भी फॉलो करें, और जिन्होंने कैफ़ी आज़मी के बारे में नहीं जाना है तो बहुत कमाल के शायर भी रहे हैं, लिरिसिस्ट भी रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता है, और अगर जेन ज़ी को नहीं पता है तो प्लीज़ जाके फॉलो ज़रूर करें स्पेशली। ओके, एज डायरेक्टर ऑफ NGMA Mumbai, what is your vision and for making modern art more accessible and meaningful to young Indians? I joined a year back, and my first attempt was to make NGMA accessible to the people, to especially to the tribal, rural students, rural youth. So मेरा पहला इनिशिएटिव था डिस्कवर NGMA, जिसमें हमने पालघर से लगभग 4000 आदिवासी बच्चे NGMA में विजिट के लिए आए। उनको गाइडेड वॉक थ्रूज दिए गए, उनको NGMA के बारे में बताया गया। उसके बाद हमने BMC की स्कूल्स के बच्चों के ट्रिप्स यहाँ रखे, और हर बार हर स्कूल के बच्चों का ये कहना था, टीचर्स का ये कहना था, हम पहली बार आए हैं, हमें नहीं पता था कि मॉडर्न आर्ट पे, कंटेम्प्रेरी आर्ट पे इतनी अच्छी एग्जीबिशंस होती हैं, इतना अच्छा वेन्यू है। और उनके BMC की स्कूल्स के बहुत सारे विजिट रखे। उसके बाद हमने ऑर्फेनेजेस जो मुंबई में है, उनके लिए यहाँ बहुत सारी आर्ट वर्कशॉप, या ऑर्फेनेज में खुद जाकर NGMA की टीम जाकर वहाँ उनके लिए आर्ट वर्कशॉप करना, ये कुछ गतिविधियाँ की है। मुंबई के बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चों के ट्रिप्स यहाँ होने लगे हैं। मेरे जैसे भी जरूर होने लगे, क्योंकि हमें तो एक्सेसिबल है और इतना एक्सेस आज मिला है डेफिनेटली। दिव्यांग बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हमने डांस वर्कशॉप्स रखवाई हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे कवि सम्मेलन, बुक लॉन्च, लिटरेचर फेस्टिवल, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, बुक रीडिंग सेशंस, और बहुत सारी एक रिसेंटली हमने बड़ा इवेंट सेवा पर्व में गेटवे ऑफ इंडिया पे किया, जिसमें 2000 के आसपास बच्चों ने भाग लिया था। थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस रखी हैं यहाँ पर। कोशिश है कि युवाओं में कला के क्षेत्र में जिस भी मामले में उनका इंटरेस्ट है, वो NGMA में आए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो काव्य हो, चाहे थिएटर हो।
और अलग अलग विधाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी तक पहुंचने की हमारी कोशिश रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये जेन जी है, ये डिजिटल गैजेट्स पे ज़्यादा रहती है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि हम एनजीएमए में कुछ डिजिटल इंटरवेंशंस लाएं। उसके लिए भी हमने एनजीएमए का खुद का पॉडकास्ट शुरू किया है, जिसमें हम महाराष्ट्र के और देश के बड़े आर्टिस्ट का, महान विभूतियों का इंटरव्यू भी लेते हैं और उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि डिजिटल रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा एनजीएमए एक डिजिटल वॉल क्रिएट कर रहा है, जिसमें एनजीएमए का सारा शो डिजिटली मालूम रहेगा। हमारे शोज़ का 360 डिग्री हम उसकी वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, ताकि वीआर और एआर के माध्यम से भी बच्चों को वो दिखाया जा सके। शो खत्म हो चुका है, लेकिन बच्चे एआर वीआर के माध्यम से उन शोज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमारे डोम में हम डिजिटल प्रोजेक्शन के माध्यम से इमर्सिव एक्सपीरियंस भी नई पीढ़ी को देना चाहेंगे, ताकि वो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट को और बेहतर तरीके से समझ सके। और जो स्पेशली हैवी के नगमा वाला जो हमारा शो है एनजीएमए नगमा, तो हम उसको एक लेकर चल रहे हैं, और ये भी नगमा वाला ही पॉडकास्ट है स्पेशली, जो आज करने को और देखने को मिला। Well, okay. You're a living example of blending intellect, creativity, and service. What message would you give to young dreamers who want to pursue more than one path? मुझे लगता है कि इंसानों में और जानवरों में अंतर ही यही है कि हमारे पास एक से ज़्यादा पाथ होते हैं। Okay. सभी जानवर जो है, उनकी एक लकीर बनी हुई है, उसी तरीके से वो उनका पूरा जीवन बीतता है। इंसान ही है जिसने हजारों भाषाएं बना ली, इंसान ही है जिसने हजारों तरीके के पहनावे बना लिए, हजारों तरीके के खाने के तरीके बना लिए। ये सब इसी कारण से हुआ है, बिकॉज हमने, जब हम सेपियंस के तौर पे, होमोसेपियंस के तौर पे इवॉल्व हुए, हमने अलग अलग रास्तों को देखना समझा। तो एक तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि बीइंग मल्टीफेसेटेड इज इंटीग्रल टू अस। और स्पेशली नई पीढ़ी जो है, आज की नई पीढ़ी किसी एक करियर पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। दे आर फॉर्चुनेटली दे आर लुकिंग साइमल्टेनियसली एट मोर देन वन करियर. They are also looking simultaneously at more skill set, more than one skill set, which is very, very good. Which is how you should evolve. You should grow as an individual. Being multilingual helps. Being multi-skilled helps. So being multi-talented helps. So in today's times, if you want to stick to one thing, that's not the way to go. That actually the future generation wants, and it is a competition for you. Okay. With your demanding schedule, how do you find time for painting? Especially, that was my question earlier when actually I visited your painting exhibition. Writing and speaking engagements like TEDx, what keeps you balanced? मराठी में एक saying है, आवड असेल तर सवड मिळेल, which means if you like something, you will find time for it. So you have to love something really, really passionately, deeply, and whatever you love like that, universe gives you time. So anyone who says that, oh, I really love painting, but I'm not getting time to paint, actually does not love painting. That's the only answer. So if you have these excuses that I love playing football, but I cannot, I love going to gym, but I cannot, you're not loving it enough. I love it more than enough. Therefore, I can find time out for painting, writing, oratory, my children. Oh, definitely. That's how you get the reply from Beauty with the Brain. Especially, there's a blend. Okay. Where do you see Indian art and literature heading in the next decade, and what role do institutions like NGMA play in that vision? उसके बाद लेकर आऊँगा अब आपके लिए famous funny question. That was a nice one. आर्ट के मामले में मुझे अभी खास तौर पे ऐसा एहसास होता है कि सोशल मीडिया ने भारतीय युवाओं को जो प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी मानवीय इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी क्रिएटिव स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। आज आप कुकिंग जानते हैं तो दुनिया भर का प्लेटफॉर्म अवेलेबल, आप अपने घर में कुकिंग करके दुनिया को दिखा सकते हैं। पेंटिंग जानते हैं, पहली बार है कि इंसान एज अ रेस, ह्यूमंस एज अ रेस are showing their skill set, talents
at such levels and to such extent, such a large extent. So future for India is bright, immensely bright, I would say, because the young boys and girls are very talented. They are not bounded by norms of caste, religion, and the other boundaries that stuck us. They are very free. They're very liberal, and they're ready to learn. They are learning many things that I mentioned earlier also. So even in the field of art and literature, we are going to get real good talents in the coming years. The challenge is the artificial intelligence. The challenge is if we don't cope up and we don't adapt the new technologies, if we are ready to adapt and take advantage from it, then definitely these are the best times to be alive. These are the best times to grow. And there is no excuse available now. You can't say that I'm in a village and therefore I can't showcase my talent, because India के हर गांव में आज मोबाइल पहुंच चुके हैं, आज इंटरनेट पहुंच चुका है. If you have talent, you can show it. Yes. और मैम के कहने का मतलब ये भी है, साथ साथ में आप लोगों को बता दूं, जो इस बात से कुछ और मतलब ना निकालें, कि स्पेशली अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं और सही दिशा में यूज करते हैं. एक्चुअली I mean to say was that. Well, very well, and that was a very nice answer. But अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैम, and for our famous rapid fire round, I think you're ready for that. और इसके बाद अगर ये राउंड बिल्कुल सारा सही गया तो हम अपनी तरफ से स्पेशली मैम को एक कप कॉफी और पिलाएंगे. Okay, you ready for it? Best advice you got in your career? Be you. Just be you. Oh, nice one. The happiest moment of your life? When I had my children, both of them. Okay. The saddest moment of your life? Why mention? Okay, you don't want to mention. That's great. Challenging moment of your life? I was Collector Raigad, and there was a landslide in Taliye village, and we were continuing with the rescue operations, and it was fourth day when the villagers came and told me, because it was heavily raining, flooded, and it were only dead bodies were coming constantly, and the possibilities of survival were very bleak. Yet I somehow believed in the miracle of rescue operations, but the villagers came to me and they requested, pleaded that, ma'am, you please stop the operations now. We know that nobody is going to come alive, and that shook me to the, like, I have never gone through a moment which was more difficult for me as an administrator, even as an individual, to take a call that from this debris we can't bring out anyone alive. So I really wanted to remain standing there, because last 4 days I was on the spot standing with the NDRF team, with the other rescue teams. But the villagers, they had given up hope, and the way they pleaded, that disturbed me. And that was the moment that the ultimate call and the decision was to be taken by collector as the head of the District Disaster Management Authority. And the decision has to come from me. I have to tell the NDRF that please stop the operation. And for that to say, just because the people were pleading, this was the most typical moment, the most challenging. There was also the hopeless at that time? So seeing people in that, because there was still more than 80 people under the debris, that some bodies had come out, and there was no hope at that time. There was no hope as per people. I was the only one, other than the only one who was saying, let's just keep going. Let's keep going. The rains will stop. Let's just keep doing. You never know. Someone may be alive. Even if these were the most difficult, I have undertaken other rescue operations also. That was the most difficult rescue operation because of the extent of landslide and the floods. But the people were not ready. They just said that, ma'am, give it up. उस दिशा में अब ज़्यादा नहीं जाऊँगा, because actually I am just saying that you are going to be much more emotional about that, especially. Okay. But क्या कर सकते हैं, was actually that was the moment. Yeah. That was the moment. Okay. Okay. Your favorite actor? Dharmendra. Okay. धर्म जी, especially. Okay, तो वहीं से fearlessness भी आती है आपके पास. Undoubtedly. Okay. Your favorite actress? Smita Patil and Shabana Azmi in Earth. Wow, great. अच्छा, अभी का नया कुछ लॉट में ऐसा कुछ नया देख रही हैं आप सिनेमा? I liked Vidya ji also a lot, Vidya Balan, and I am also
like I'm a good fan of relatively Alia Bhatt also. She is also very good. Some work, great. Your favorite book, apart from Gitanjali? Gitanjali is a favorite poetry collection, but my most favorite book is *Sapiens* by Yuval Harari. अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ी है, अच्छा मैं याद रख लेता हूँ, तो मैं पूछ लूंगा उनसे. All three books of Yuval Harari are good, other than *Sapiens*, *Homo Deus* and *Nexus*. But *Sapiens* is an all-time favorite. Okay. I was reading Paulo Coelho, so that's why actually I knew about Pablo Coelho, *Alchemist* is very, very good. Yeah. On And Hindi में *Mahasamar* by Narendra Kohli is again another favorite. Marathi में *Parv*. So there are many books. मैंने मराठी राइटर की उनकी लास्ट ये वाली पढ़ी थी, जिन्होंने छावा अभी लिखी है. Chava, उससे I have पहले read उन्होंने that also. छावा से पहले मैंने एक पढ़ी थी, मैंने छावा नहीं पढ़ी, मतलब जिन्होंने स्पेशली लिखी थी मृत्युंजय, Mrityunjay, देन युगांधर. Mrityunjay, Yugandhar, all three I have read. Chava also. सो एक्चुअली आई वाज रीडिंग युगांधर क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा Yugandhar is on Krishna, Mrityunjay, is for the current. Karna. Okay. Okay, some insights of your life, an idea that changed your life. Even the greatest people have 24 hours in life. You're right. वो मैं अभी उसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो मुझसे नहीं हो रहा है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब इनको कैसे वक्त मिल रहा है, ये कैसे निकाल रहे हैं, और इनके पास भी उतने 24 आवर्स हैं, या तो इनके पास को भी कुछ चीज़ें जब मैं बाद में एनालिसिस करता हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं यार चलो इनके पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं, और फिर बाद में देखता हूँ कि इनमें से किसी के पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, एंड हाउ दे डू इट. तो मेरे साथ वही हो रहा होता, दैट्स व्हाई मैं जूझता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ कि वही लिमिटेड 24 आवर्स हैं, क्या कर सकते हैं उसमें. वेल, okay, what it's the best role of your life? That is a tricky one. Mother, wife, daughter, or teacher. And now I am giving you also and adding two more options as a NGMA director and IAS. The best role is being me, Okay. who is at the same time a mother, a painter, an author, an IAS, an orator. Being a woman and being alive in the current times. And at any given point of time, I'm playing all the roles. It's That's not why actually you are the best in actually all role, and you're trying to be the best in all role. Oh, nice one. Okay. So now this or that round, I am giving you the option. You have to choose. Okay. Veg or non-veg? always a vegetarian. Okay. Tea or coffee? Always green tea. ओके, अच्छा है कि मुझे आज स्पेशली उन्होंने कॉफी पिलाई. ओके, जिम और योगा? Anytime yoga. ये टाइम योगा. ओके, अर्ली राइज और नाइट आउट? Everyday early riser. अच्छा, तो उसका टाइम मिल पा रहा है आप सब काम के बाद? नींद हो पाती है? नींद हो या ना हो, जागना सुबह जल्दी है. सूर्योदय से पहले जागना है. वो मतलब फिर भी आपके चेहरे पे जो रौनक दिखाई दे रही है, स्पेशली इतनी कम नींद के बावजूद, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपका सीक्रेट क्या है, तो मुझे काम आएगा. ओके, इमोशनल और प्रैक्टिकल? Emotional anytime. बिल्कुल. It's good to be good to have emotions. What is the point in being so practical that you can't cry, you can't weep, you can't laugh? You cry sometimes? This is each one of us should. Sure. कौन से पंछियों को आपने रोते देखा, कौन से जानवरों को रोते देखा? इंसानों को ही रोना और हंसना आता है. तो ये दो चीजें हैं जो हमारे इमोशंस दिखाती है. हमें हंसना आता है, हमें रोना आता है, और इन दोनों के मामले में कच्चा नहीं होना चाहिए. भर के रोना चाहिए, भर के हंसना चाहिए. So when you actually want to cry, तो कभी घर में आप अकेले में किसी कोने में आपका जो फेवरेट कोना वहाँ रोते? जब रोना आए तब रो लेना चाहिए. अच्छा. बेवजह ये मत नहीं सोचना चाहिए कि किसी का कंधा जरूरी मिले आपने तो, क्योंकि देखे ना देखे इनहिबिशंस देखना नहीं. आंसू तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान. तो पहला कवि जो है वो दुख से भर के, आह से भर के कविता निकलती है. एनी पोएट्री एंड एनीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल इन ह्यूमन लाइफ हैज कम आउट ऑफ पेन. पेंटिंग स्टार्ट्स विद PAIN. सो एंड कविता का जन्म दुख से होता है. रामायण की पहली जो कविता है जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, चकवा और चकवी को, एक बहेलिया चकवे को मार देता है, चकवी तड़प तड़प कर मरती है, उसको देख के पूरी रामायण जन्मी है. जी. तो आंसुओं से मुझे नहीं लगता इंसानों को कुछ भी ऐसा फील करना चाहिए कि मुझे यहाँ नहीं रोना है या वहाँ नहीं रोना है. जब दुख अनुभव हो उसको गहरे से अनुभव किया जाए, और आंसू आए तो बिल्कुल बहने दिया जाए. नो, फॉर मी एक्चुअली इट इज द प्योरेस्ट इमोशन. मुझे थिएटर में जाके पता चला कि ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, कि एक्चुअल में ये प्योरेस्ट इमोशन है जिसको मैं सोच रहा था कि बहुत इनोवेशंस है. नहीं बिल्कुल इनोवेट होने की जरूरत नहीं. पता चला, बट ठीक है कि कई लोग ऐसा समझते हैं, कई लोग नहीं. किसके लिए प्रैक्टिकल होना है? जिंदगी 30,000 दिनों का खेल है.
अच्छा, आधी निकल चुकी है, आधी बची। ये अच्छा आपने स्पेशली काउंट किया है। ये अच्छा लगा मुझे। ओके, बुक्स और किंडल? ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स, अच्छा नहीं, ये जो बीच का एक नया संगम आया आपने निकाला है। ओके, माउंटेन्स और बीचेस? डेजर्ट। डेजर्ट। आई एम फ्रॉम राजस्थान। ना, ये अच्छा है कि मेरा एक्चुअली जन्म राजस्थान में है, कोटा राजस्थान से, तो अच्छा है कि मुझे वो राजस्थाना नवाबीपन या आप कहो तो राजपूताना अंदाज और वो मिट्टी, सौंधी मिट्टी और वो डेजर्ट वाली मिट्टी है, उसका अंदाज मिल रहा है आपसे अब। रिलीजियस और स्पिरिचुअल? यू सीम्स लाइक स्पिरिचुअल। ओके, ये तो थे स्पेशली ये वाले कुछ क्वेश्चंस। बीच बीच में मैंने मूवी देखी एक साउथ की, अब उसमें हर बार एक नया वर्जन हम लोगों के पास आता है और स्पेशली जब उसकी रील करती है तो अलग आता है। सो एक्चुअली नाउ यू आर नाउ अ डेज एंड यू आर द IAS, तो अब आप आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं। तो कभी तो लोग बोलते हैं कि MLA बड़े होते हैं, MP बड़े होते हैं, मिनिस्टर्स बड़े होते हैं, और साउथ तो आपको एक्चुअली पता है कि उनकी मूवीज में कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाते, तो उनमें से एक हीरो आता बोलता है कि एक्चुअली बड़े हम होते हैं, हम तुम लोगों को गाइड करते हैं, तुम्हारे सिर्फ एक सिग्नेचर चलते हैं, चलाते हम हैं देश को। बट अब जब मैं जाकर उनको देखता हूँ तो हाई कोर्ट में जब वो खड़े होते हैं तो हाई कोर्ट उनको कोई निर्देश दे रहा होता है, वो निर्देश ले रहे होते हैं या सुप्रीम कोर्ट से। तो एग्जैक्टली बड़ा क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल से टू मी दैट के देखो सबसे बड़ा जो संविधान है वो उसको फॉलो करते हैं, तो उस जवाब के सबसे बड़ी जनता होती है। ओके, जनता होती है, जनता चुनती है। और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि जनता और जनप्रतिनिधि सबसे बड़े वही होते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स को या कोर्ट्स को या किसी को भी ये वहम है कि उनसे बड़े हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वही लोकतंत्र में सबसे बड़े। हाँ, क्योंकि इससे अंदाजे गलत मिलते हैं ना, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अंदाजे गलत बिकॉज हमारी डेमोक्रेसी अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में एक लोक प्रतिनिधि जिस तरह से जनता की सेवा कर सकता है, जिस तरह से जनता के लिए बहुत सारे काम कर सकता है, नई पॉलिसीज बना सकता है, जनता के मुद्दों को आगे ला सकता है, उस लेवल पे आज अभी हमारे लोक प्रतिनिधि मैच्योर नहीं हुए हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लोक प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के उतने सारे एवेन्यूज नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी हेल्दी लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वही सबसे ऊपर होने चाहिए। और वो अगर देखेंगे तो फिर सिनेमा वैसा बनेगा उन पर, तब दिखाई देगा लोगों को। ये है कि उनको बैलेंस, बिकॉज लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस बने हुए हैं, तो अगर लोक प्रतिनिधि संविधान के बाहर कुछ चाहते हैं तो न्यायपालिका उनको रोक सकती है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि उनको एड एंड एडवाइस देने का, अगर वो लीगली काम नहीं है तो एड एंड एडवाइस में वो लिख सकते हैं कि ये कानून के हिसाब से नहीं है, न्याय के हिसाब से नहीं है। किंतु अंततः कोई भी देश जो है वो लोगों से मिलकर बना होता है। लोगों की इच्छा क्या है उसको सर्वोपरि मानना चाहिए। वेरी वेल आंसर्ड स्पेशली। ओके, बढ़िया। पिछले दिनों स्पेशली काफ़ी सारी चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती हैं, अब ये इतर है, ये स्पेशली आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं, तो अब उससे रिलेटेड कुछ आपसे सवाल करता हूँ। कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को सुओ मोटो कुछ ले लेना चाहिए अपने से? हम कई बार स्पेशली देख रहे हैं पिछले दिनों से भाषाई अंतर बहुत होता है, और भाषाई अंतर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातचीत लोग करते हैं और उसमें तलखियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बनिस्बत इसके कि उसको लेकर एक और चीज़ किया जाए, दूसरा प्रयास करके ऐसा किया जाए कि इसका हम एक दूसरा ईजी प्यार भरा सॉल्यूशन आपको ये देते हैं, उसके ज़रिए वो ना करके एक दूसरे से लड़ना झगड़ना या उसमें एक तलखी लाना, ये कहाँ तक सही है या आप कैसे देखती हैं? देखिए, भारत में जितने राज्य हैं, सभी राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं भी है, फिर भी हम सब एक साथ में हैं, एक देश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। यूरोप में हर भाषा के आधार पे अलग देश बना हुआ है। फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस में रहते हैं, इटालियन बोलने वाले इटली में रहते हैं, इंग्लिश बोलने वाले इंग्लैंड में रहते हैं, जर्मन बोलने वाले जर्मनी में रहते हैं। भारत में जो भाषांतर दिखाई देता है वो सिर्फ अपनी अपनी भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए एक किया गया प्रयास मात्र है। और इसके कारण भी है क्योंकि भारत में अंग्रेजी का प्रभाव 200 सालों तक ब्रिटिश रूल भारत में रहा। उसके बाद भी दुर्भाग्यवश अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ता ही गया, और इस देश की अपनी भाषाएं जो है, हिंदी हो या स्थानिक भाषाएं जो है, उनका प्रभाव कम होता जा रहा है और लुप्त प्राय हो रही है। मैं मारवाड़ से आती हूँ, राजस्थान से आती हूँ, और राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी, गुजराती और मराठी में
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भाषा का स्क्रिप्ट देवनागरी है, बोलने का तरीका, उसकी जो ग्रामर का स्टाइल है, वो राजस्थानी को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। राजस्थानी ज़्यादा संकट में है और इसलिए अगर कहीं कुछ राज्यों में कुछ लीडर्स प्रयत्न करते हैं कि नहीं हमारी भाषा में बोला जाना चाहिए, हमारी भाषा में, तो उनके डर का कारण सही है। हाँ। उनके डर का कारण स्वाभाविक है, क्योंकि ये भाषाएं सदियों के बाद एक भाषा बनती है, उसकी ग्रामर तैयार होती है, उसकी वोकेबलरी तैयार होती है। और अगर युवा पीढ़ी वो बोले ही नहीं, वो देखे ही नहीं, उस भाषा में बात ही ना करे, संवाद ही नहीं करे, तो वो भाषा खत्म हो सकती है। और कितनी भाषाएं खत्म हो गई है दुनिया में। हाँ। और भाषा एक इतना बड़ा, इतनी अमूल्य निधि है जिसको नष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये है कि हर पॉलिटिकल लीडर को, हर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर को, हर भाषा के प्रचारक को ये समझना चाहिए कि जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखेंगे उतना ज़्यादा समृद्ध होंगे। तो हमें किसी दूसरी भाषा का विरोध नहीं करना है, हमें अपनी भाषाओं में ज़्यादा साहित्य समृद्ध कैसे हो सके, अपनी भाषाओं में लोग ज़्यादा बात कैसे कर सके, पहुंचा कैसे सके, ज़्यादा लोगों तक, युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सके, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं खास तौर पे मैं मारवाड़ी के बारे में तो कहना चाहूंगी कि अभी नई पीढ़ी बिल्कुल मारवाड़ी बोलना नहीं जानती है। और ये इसलिए हुआ बिकॉज राज्य का संरक्षण जो भाषा के लिए मिलता है, जब आप की राज्य की एक भाषा होती है, तो वो राजस्थान में राजस्थानी को, मारवाड़ी को नहीं मिल पाया। करेक्ट, क्योंकि हम तो एक अभी प्ले कर रहे थे जब रेत द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर, तो हमने तो मारवाड़ी भाषा तब वहां उस प्ले के लिए सीखी, तो हमें पता चले उसका। इट इज एज गुड अ लैंग्वेज एज गुजराती और मराठी, but it could not thrive because it was not the state language. यस, करेक्ट। मुझे तो राजस्थानी वाला मुझे लग रहा था राजस्थानी भाषा बड़ा नहीं, इस तो संविधान, हाँ नहीं, भारत की जो शासकीय भाषाएं हैं उनमें राजस्थानी अभी भी शामिल नहीं है। और इतनी समृद्ध भाषा है, बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है राजस्थानी में पिछले कई सालों का। वो सारा साहित्य कहीं ना कहीं अब धूल खा रहा है, क्योंकि उसे पढ़ने वाले लोग एक जो जिस तरीके से अन्य भाषाओं में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, और भारत की सारी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। बहुत सारी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, उड़िया, इन भाषाओं का, मराठी, इनका साहित्य उतना ही समृद्ध है जितना अंग्रेजी भाषा का, जितना जर्मन भाषा का है। तो भाषाओं का वाद ना करें, लेकिन भाषाओं को प्रोटेक्ट जरूर करें। स्पेशली yeah, okay. If UPSC was a movie, what genre would it be? Thriller, drama, comedy, or something else? Thriller? Okay. उस thriller से go through करके Yes. घूमते हुए वहां से जाते हैं especially. Okay. If you could describe your IAS journey in a single metaphor, what would it be and why? Especially what would it be? Because all three of us, me, my sister, my brother, all three of us ended up clearing UPSC, I would say destiny. मैं अगली बार ना एक उनको भी इनवाइट करूंगा आपके साथ, स्पेशली मैं मतलब पूरी फैमिली के साथ कर रहा हूँ अभी पॉडकास्ट, मुझे याद आ रहा है, पता चला तीनों के साथ करता हूँ फिर मैं। ये नई चीज आपने बताई मुझे। ओके, व्हाट पर्सनल बिलीफ डिड यू हैव टू अनलर्न टू ग्रो ड्यूरिंग दिस जर्नी? I used to believe that I'm not good enough, I am not fitting within, I'm like, when I was in I was doing my master's degree, I could not speak English fluently, so and English literature ही पढ़ रही थी बावजूद इसके मुझे spoken English में confidence नहीं था, तो मुझे लगता था I'm not good enough, and I'm not good enough has remained with me for quite some time. And yeah, I have always been an introvert, so meeting people and interacting in general was never easy for me. And I actually unlearned it. Now I can talk to strangers, I can talk to anyone. And this has been a very, very long journey. I chiseled myself every single day that it's okay to interact with anyone who comes to ask you for help, ask you for guidance, suggestion. But this was not the real me, especially on this front, because I was someone who didn't like talking much. This one thing, especially the change. That's already. Okay. What was the moment you felt like quitting and what stopped you? मतलब ऐसा बीच में ऐसा लगा? I'm not a quitter. I don't think I have ever quit on anything. In fact, so all these master's degrees, or when I decided to write UPSC, or
I have done Vipassana, and it's difficult to do, and at not even for a moment in any of these things that I've done treks, I've done half marathons. At no given point of time, I would say, no, I can't do it. I am someone who always believe, no, it is going to end and I will reach there. सही है बाबा, मेरी तुम डायरी वगैरह लेकर आना, मैं लिख लूँ कि उन्होंने क्या क्या किया है. मैं पहले ना ऐसे लिखूंगा अभी, स्पेशली मैं देखूंगा क्या क्या आपने किया है और क्या कुछ रह गया है करने के लिए. ओके, व्हाट डज द यूपीएससी जर्नी टीच यू अबाउट पीपल, नॉट जस्ट अबाउट बुक्स? ये वो कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए स्पेशली हैं. Yeah, about people all over the world are good. And when you read for the civil services examination, you read about world history, you read about world economics, international relations. And when you read all that, and the journey is so beautiful, it broadens your mindset. And everywhere. So even in my RBI interview, I was asked if you will be posted in Chennai because I came with Hindi background and I was a Hindi medium student. So I confidently replied anywhere on planet. And I still believe in this. I still believe in this, that I can live and live happily anywhere on the planet. ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात आपने कही मेरी. Okay, how did failure rewrite your personal strategy, if any? Failures have been many, not any. And but each failure is nothing but a stepping stone to move further. ये स्पेशली हम लोगों के साथ आज हो रहा था, तो हम देख रहे थे कि मास्टर वाला अगर हमारा कैमरा रुक गया है तो हम किस तरह से आगे बढ़ें. She told us कि नहीं चलो ठीक है, कहते हैं कुछ इस तरह से आगे बढ़ाते हैं. Well, which small habit actually made the biggest difference? Not eating after sunset. हाँ, ये अच्छा, ये मैंने अभी फॉलो किया है स्पेशली. ये जिसके लिए मुझे बता भी रहे हैं मेरे आसपास वाले कलीग कि हाँ सही है सही है. ओके, if you were given 24 hours as the prime minister, what's the first policy you would announce? Scrapping a lot of rules and a lot of laws which are outdated. हाँ, that's correct. अब मुझे लग रहा था आप शायद स्क्रैप के बारे में कुछ बोलने वाले हैं कि बहुत सारा स्क्रैप भी है जो देश में इधर उधर है. मुझे वो सच में दिख रहा था और मैंने काफी यूनिवर्सिटी में देखा था. ये मैं But I have done when I was joint commissioner in BMC. So हमने बहुत सारा ऑपरेशन खटारा शुरू किया था. तो फ्लाईओवर्स के नीचे, बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में जो पुरानी कारें, पुराना फर्नीचर, पुराने मटेरियल बाहर रख देते थे, तो सारा उठा के हमने ड्यूरिंग माय 2 years tenure I implemented that very well in coordination with joint commissioner of police. But we were able to get rid of a lot of Khatara from the roads of Mumbai. ये नाम बड़ा प्यारा था, मेरा ऑपरेशन खटारा. Khatara, yes. ये अच्छा ऑपरेशन खटारा. Nice one. Okay, you are coming with the humorous name. Okay, if you could time travel and meet any freedom fighter or leader, who would it be and what would you ask them? Gandhi ji. And I would just sit by his side and listen to Ishwar Allah Tero Naam, Raghupati Raghav Rajaram. Okay. Okay. Imagine UPSC was a game. What superpower would help a candidate to win it? Confidence. Okay, तब यही सुपर पावर बस वो लेकर. This is more than enough to win the world. This is more than enough to win the world. Okay. What's the one invisible issue in India that does not get enough attention but should? Population, casteism, इस सब के regionalism के अलावा शायद ऐसा कुछ. I think we don't talk enough about speed, efficiency. We speak so much about corruption in the system. We speak so much about many other things. If only the files were decided early, if only the decisions were taken early, if only the roads were built in time, if only the bridges were built in time. Correct. More than these topics, we need to speak about time management and ensuring that efficiency is there in the system. Time management. Everything gets delayed and so much of cost overruns, time overruns happen, and we rarely talk about it. कि आपको 20 साल क्यों लग गए एक ब्रिज बनाने में, 10 साल क्यों लग गए एक रेलवे लाइन बनाने में. आपने बहुत सही सवाल छेड़ा. मैं क्या करूं, वक्त कम होता है. और ये मुझे हमेशा से लगता है, और ये स्पेशली अंधेरी वाला जब वो फ्लाईओवर जो टूटा और उसके 4-5 साल उसके बनने में लग गए, तो वो बड़ा अजीब ताजुब था. ये ऐसा क्यों? एफिशिएंसी पे कम बात करते हैं, एफिशिएंसी पे ज्यादा बात करनी चाहिए. हम बहुत ज्यादा बात करते हैं बाकी चीजों पे.
हम कंपैरिजन तो करते हैं कि हम चाइना से कंपैरिजन, हम यूएसए से कंपैरिजन कर रहे हैं, पर हम 30 साल पीछे हैं, हम कर नहीं। विदाउट एफिशिएंसी ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि वो ये जो बिल्डिंग है एनजीएमए की, इस बिल्डिंग के लिए जितना बजट एलोकेट हुआ था और जो टाइम बताया गया था, उससे कम टाइम में ये बिल्डिंग बनी है और कम पैसे में, पैसा खर्च हो गए। मैं इससे पिछले ऑफिस में जहाँ पर थी, एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल, वो बिल्डिंग भी जितना वक्त दिया गया था उससे कम वक्त में बनी थी, कम पैसे में बनी थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग में आप बड़ा सा प्लाक देखेंगे, उसके लिए जितना फंड दिया गया था उससे कम फंड में और कम वक्त में वो बिल्डिंग तैयार होकर खड़ी हो गई थी। हम कहीं ना कहीं एफिशिएंसी की वैल्यू भूल चुके हैं। तो डू यू थिंक एक्चुअली कि वैसे अब लीडर्स नहीं है, लोग नहीं है, वैसा कर नहीं रहे? क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स बन गई, 3 तो अभी आपने ही बताया। बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं। फोकस उन सब के कारण से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी भारत में जितनी चुनौतियां हैं, जैसे मैंने कहा, भारत में एक पूरा यूरोप ऑलरेडी है। हाँ। यूरोप इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, हम एक साथ फिर भी जी रहे हैं, रह रहे हैं। और भारत के साथ जो देश आजाद हुए थे, अगर हम पाकिस्तान को ले लें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उस कंपैरिजन में हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड हम एक हर अगले साल एक बेहतर डेमोक्रेसी के तौर पे ग्रो कर रहे हैं। हमारे चुनाव बहुत निष्पक्ष होते हैं, तो बहुत सारी अच्छी बातें। हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं भारत में, हरित क्रांति के कारण से, अनाज उत्पादन में, बहुत सारी और चीजें जिसमें भारत आगे आया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर एफिशिएंसी को और वैल्यू दी जाए, सोशली ग्रो करेंगे। हाँ, हम लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं करते इस बात को कि भाई ये प्रोग्राम 1 घंटे में होना चाहिए तो 1 घंटे में होना चाहिए, इस वक्त शुरू होना चाहिए। टाइम की वैल्यू अगर करने लग जाएंगे, सब बदल जाएगा। ये स्पेशली मैम ने हम लोगों की तरफ भी इशारा दिया है, वो समझना है स्पेशली। नहीं मैम, मैं टाइम पे कर लिया हूँ शुरू। और चीजों के लिए टेक्निकल चीज। ओके, हाउ कैन द सिस्टम बिकम लेस अबाउट पावर एंड मोर अबाउट पीपल? What I understand, only one thing, the power. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. So पर्पस जो है वो कई बार तो पब्लिक सर्विसेज में जो लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है। एंड ऑल ऑफ अस लिव फॉर अ लार्जर पर्पस। Even if you tell a peon how important it is to clean the floors, if you make them aware that उनके काम का वैल्यू क्या है for people, they would do it better. But unfortunately trainings पे फोकस कम है। Unfortunately ये reinforcement, alignment of purpose, the larger purpose of why are we doing what we are doing in all the organization, any organization in the system, that goes missing. और इस कारण से जो people है, the larger purpose of having these institutions, we lose that focus. Correct. Okay. Now the last one. So you can now take a slap of breath. What's your guilty pleasure during preparation? I used to love eating 5-star. Oh, okay. So at that time actually you got? I still prefer it whenever I feel stressed, but I actually feel guilty also after taking it. At that time actually in a day, how many? No. For me, even eating 1 5-star will be guilt. Because I'm not into eating sweets and chocolates, but obviously exams give you ample stress, even work life. So 5-star is something that I always loved since my childhood. And this is one chocolate that can make my mood, like lift my mood up. But I would not eat 4, 5. I'll eat 1 only, but I feel guilty about it. So what is your favorite sweet? अगर 5-star को अलावा मिठाई? Favorite sweet, I like आटे का हलवा। घर का बना हुआ आटे का हलवा। लापसी I like very much. राजस्थान में जो मारवाड़ में लापसी बनती है वो मुझे बहुत आती है। Okay. What is the weirdest myth you have heard about IAS officers? That we play golf. Okay, not all of We never get time, but a lot of people, especially when these pay commissions come, 7th pay commission was coming, and there were a lot of cartoons which were coming that these bureaucrats, and
just play golf. Why should their salaries be increased? Look, we don't have that much time. We are really, really busy. ऑनेस्टली मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि बिजनेस में ज्यादा गोल्फ खेलते हैं, उसके बारे में तो मैंने एक ही मिस सुना, दे आर सो मच। नहीं, हमारे बारे में भी ये है कि क्लब्स वगैरह में क्लब्स की मेंबरशिप होती है एंड वी प्ले एंड ऑल, बट वी डोंट गेट टाइम. क्लब्स आई नो, Even if say I spend time on my hobbies like painting and writing, this is also with a great difficulty. Yeah, this is also with great difficulty. So it's not that we get time to have वो say, जाना club कहीं visits and all. No, never. तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा. Thinking that which Bollywood character would never clear UPSC? I And apart from them, actually, अगर आप बोले आलिया भट्ट तो उसके अलावा. think Alia would still do, Ranveer would not. Okay, if IAS training had a theme song, what would yours be? We have a theme song there in academy. Labasna has got a theme song, Okay. but otherwise, Urta Urta Ek Parinda. बिल्कुल. You're talking about IAS training only. कोई भी अगर आपको Because लगता है कि this theme is song, one. it can be the theme song. About our training. I don't know. Ekla Chalore maybe. हाँ एकला चल. यदि तो ना दक्षिणों के आशे तो दो एकला चलो. Ekla Chalore. मुझे तो प्ले मैंने क्योंकि किया था इसलिए मुझे याद रहा सीखने के लिए स्पेशली. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम. और अगली बार के लिए हम लोगों ने ज़रूर वो सीखा है, मेरे दोस्तों ने टेक्निकली इसलिए जो आपने हम लोगों को सीख दिया स्पेशली. बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम Thank you so much. एंड योर विजन, Thank you. योर ब्रेन एंड योर थॉट्स. और स्पेशली ये था आज एफटीसी के लिए आप लोगों के पास आपका एपिसोड. तब इसको वाला पर जल्दी आपको देखने को मिलेगा. मी डेफिनेटली विद मिस दिनेश चौधरी जो कि हैं एनजीएमए के डायरेक्टर. और आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.